Welcome to Sumit Sir's channel. Sorry. रिविजन में आते हो तुम लोग, केस स्टडीज में नहीं आते हो. आई रियली डोंट नो व्हाई. आई स्टॉप टेकिंग केस स्टडीज इन. ओके 6 लाइफ. चलो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था. लेट्स गो अहेड विद थर्ड क्वेश्चन. गुड इवनिंग अनंता. तुम लोग केस स्टडीज में क्यों नहीं आ रहे हो? केस स्टडीज ऑनेस्टली हमसे ही मैनेज नहीं हो रहे हैं 4 बार रीड करके. तो इतना अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव 30 केस स्टडीज. या यू शुड कम इन द क्लास. ठीक है. ओके फर्स्ट एंड सेकेंड डन. कम टू थर्ड वन. डूडल INC, डूडल इंक इज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन USA. मैं ना डायग्राम ड्रॉ करते जाती हूँ. आई थिंक दैट विल वर्क अ लॉट. Okay. Doodle Inc. is an entity incorporated in USA and is engaged in provision of various information technology related services directly as well as through its subsidiaries located across the world. In India, Doodle India is a subsidiary of Doodle Inc. Okay. तो Doodle Inc. स्पेलिंग सही है ना? USA होल्डिंग है एंड दे हैव डूडल इंडिया विच इज इन इंडिया. और ये क्या है कि हाउ डज इट मैटर सचिन? एक कार में सुनाई दे रहा है ना? ओके. एंड इज रजिस्टर्ड इन कर्नाटका. कहाँ रजिस्टर्ड है? सिर्फ कोशिश करो हर पैरा को फ्लो चार्ट में कर दो कि वो बार बार रीड करना नहीं पड़े. एंड अंडर GSTN इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू वेरियस कस्टमर्स इन इंडिया. Doodle Inc. provides cloud-based storage services to its customers, business entities as well as non-business entities in India. The customers can subscribe to this service by making online payment directly to Doodle Inc.'s bank account through internet banking and other modes. And the term and conditions for such services are entered between Doodle Inc. and the customer directly without involvement of any third party. That means cloud-based storage services. ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज जो हमारा ये गूगल ड्राइव होता है ना, डायरेक्टली किसको देते हैं? कस्टमर्स इन इंडिया. ठीक है. ओके. इन केस ऑफ एनी इशू द कस्टमर्स कैन कॉल एंड लॉग द इशू एट द हेल्प कस्टमर हेल्प सेंटर which is operated by Doodle India. Okay. Doodle India क्या करके देता है? बैक ऑफिस. मतलब अगर वहां पे कोई इशू आ रहा है then you have to go to Doodle India and that is on principal to principal basis. For operations on such customer health center, Doodle India is paid on cost plus 10% basis by Doodle Inc. on monthly basis. Okay. तो इसके लिए
सपोर्ट सर्विसेज के लिए कॉस्ट प्लस 10% पे करते हैं, राइट? Am I clear? Next, further Doodle India is engaged in promotion and marketing of cloud-based storage service on principal-to-principal basis in India. For Doodle Inc., the payment of such service is made by Doodle Inc. to Doodle India on monthly basis of cost plus 20%. The promotional marketing activities are carried out in the name of Doodle Inc. without any reference to operations of Doodle India. Okay. तो इसके लिए मार्केटिंग के लिए he is giving cost plus 20%. Am I clear? Doodle Inc. owns online space for advertisement on internet. Doodle Inc. has agreed to sell such online advertisement space to Doodle India for an amounting of rupees 5 crores per month. Doodle India sells such advertisement space to customers in India on its own account. The contractual agreement or sale for such advertisement space between customer and Doodle India. Okay. अब 5 करोड़ वाला पॉइंट क्या है, कौन बताएगा? अब नीचे Doodle Inc. कितना पे कर रहा है? Is paying to Doodle India 5 CR, right? For online advertisement. Am I clear? Okay. Doodle Inc. provides technology support to Doodle India and charges royalty from Doodle India for such technology support at a fixed charge of 25 lakhs per month. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? वापस ये दो पैरा पढ़ रहे हैं. Doodle Inc. owns online, बेचा है तो is getting payment for an amount, sells such online space, इनको पे दिया for 5 crores. That means payment of 5 crores यहाँ से भी गया, and plus Doodle Inc. provides technology supports to Doodle India and charges royalty from Doodle India for such 25 lakh per month. तो 25 lakhs और जा रहा है. Then other expenses 75 lakhs and 50 lakhs. Other expenses कितने इसके? 75 lakhs है plus 50 lakhs है. Doodle India on 8 CR on sale. इंडिया में बेचने पे उनको कितना मिला? 8 करोड़ का उनका टर्नओवर है. Doodle Inc. earned 10 crores from non-taxable online recipient. आज ही पढ़ा है मैंने. Non-taxable online recipient से कितना है? Doodle Inc. to non-taxable online recipient is 10 CR. Am I clear? The opening balance of ITC credit for relevant period for Doodle India is nil. 9% CA, 9% as an 18% IGST. Am I clear? Okay, now let's come to questions. सोच के समझ के जवाब देना. What shall be output tax payable without any adjustment of ITC by Doodle India? ये simple question है. Doodle India without ITC कितना दिया? 8 करोड़ का दिया, and 8 करोड़ का 18%, 14,40,000. करेक्ट. कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट का आंसर क्लियर हुआ क्योंकि उसका आउटपुट टैक्स अप्लाई, आउटपुट टैक्स बोला है. क्लियर? अच्छा, अब यहां बताओ, यहां पे फर्स्ट केस में सप्लायर है, ये रिसिपेंट है, आरसीएम लगेगा, ये भी आरसीएम लगेगा, यस और नो? और यहां पे क्या लगेगा? एफसीएम लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. What shall be the net GST liability of Doodle Inc. for the month of January? Doodle Inc. की लाइबिलिटी कितनी है? तो Doodle Inc. बेसिकली तो इंडिया के बाहर है, पर वो किसको दे रहा है? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट को. तो 10 करोड़ पे he will have to pay 18%. That means 18 lakhs. Am I clear? 3.2 का भी clear?
एम आई क्लियर? आगे थर्ड क्वेश्चन आई थिंक अच्छा है, देखती हूँ मैं. व्हाट शैल बी टोटल आईटीसी? आईटीसी कितना डूडल इंडिया के पास? देखो, डूडल इंडिया ने 75 लैक्स का खर्चा किया, 50 लैक्स का खर्चा किया, ये 5 करोड़ का खर्चा किया, ये 25 लैक्स का खर्चा किया. इन सब पे टैक्स पे करेंगे और इन सब का आईटीसी मिलेगा. तो 5 करोड़ प्लस 25 लाख प्लस 75 लैक्स प्लस 50 लैक्स का 18%. 18% कितना हुआ इन सब का? 5 CR प्लस 75 लैक्स प्लस 25 लैक्स प्लस 50 लैक्स का 18% कितना हुआ? 1 करोड़ 17 लाख. क्लियर? Next, please select the correct statement specifically in relation to sale of online advertisement space service provided by Doodle Inc. मैंने बताई है ये Doodle Inc. जब स्पेस दे रहा है, किसको दे रहा है? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन. तो क्या लगेगा? FCM. Doodle Inc. is providing online information database access or retail services required by register, okay, in India, and GST and discharge GST in forward charge mechanism. Okay, Doodle Inc. नो GST इज गलत, RCM नहीं लगेगा, गलत. सी क्यों आया यार? क्या क्वेश्चन पूछा ऊपर? प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट स्पेसिफिकली रिलेशन सेल ऑफ ऑनलाइन. अच्छा, फ्रॉम डूडल इंक टू डूडल इंडिया में कस्टमर सोच रही थी, राइट राइट, तो RCM लगेगा. FCM गलत, एग्जाम्प्टेड गलत, एजेंट गलत. आंसर इज ए, आंसर सी, सॉरी. एम आई क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? कहानी बहुत ज्यादा थी इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ दिखा नहीं मुझे. कोई कंफ्यूजन है बोलो मुझे. बोलो यार, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन. XYZ is a XYZ Limited is registered with the jurisdictional GST authorities in the state of Rajasthan and operates in multiple businesses. The principal business of XYZ is works contract. Okay, XYZ Limited पहली बात तो रजिस्टर किधर है? And is into works contract. करेक्ट. कहानी पढ़ने और समझने में ही 25 से 30 मिनट लग जाते हैं. करेक्ट. ये मैं इसलिए कर पा रही हूँ कि वो 25 से 30 मिनट को मैंने ऑलरेडी दे दी है. इसलिए मैंने आप लोगों को कल भी कहा था, केस स्टडी में आपको ये मैं जो पढ़ा रही हूँ फ़ायदा कब होगा? जब आप रीड करके आओ. अगर आप लोग रीड ही नहीं करके आओगे, कोशिश ही नहीं करके आओगे और सब कुछ स्पून फीडिंग चाहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है. तो क्या लिखा है? XYZ is registered with the jurisdiction GST authority in state of Rajasthan and operates in multiple businesses. The principal business of XYZ is works contract service being provided to customer by way of fabricating and installing the body for large transportation vehicles. The chassis of the vehicles are provided by the customers to XYZ Limited. XYZ Limited procures the materials for fabrication and install the same on the chassis against a lump sum agreed amount for material as well as services. I hope you are getting my point.
मतलब बेसिकली है चेसेस कौन दे रहे, कस्टमर्स दे रहे हैं टू XYZ, फिर XYZ उसके ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों करके दे रहे, क्योंकि इज इनटू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस. In addition to above business, XYZ Limited is also engaged in providing transportation of goods by road through its own fleet of trucks. दो बिजनेस में, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में भी है एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में भी है. और उस पर कितना GST लग रहा है, 5% लग रहा है. तो कैन यू टेल मी 5% लग रहा है मतलब क्या होगा यहाँ पे, 5% लग रहा है तो क्या होने वाला है यहाँ पे. RCM, GTA में भी 12% एंड 5% का कॉन्सेप्ट है. तो 12% है तो FCM है एंड 5% है तो RCM है. ओके, करेक्ट. During the month of January, XYZ Limited undertook the following transactions. Oh my God, कितने transactions ये, 8. तो ऐसे में ना यू नीड टू कीप अ नोट कि आउटवर्ड सप्लाई कौन कौन सा है एंड इनवर्ड सप्लाई कौन कौन सा है. आउटवर्ड सप्लाई कौन कौन सा है एंड इनवर्ड सप्लाई कौन कौन सा है. फर्स्ट पॉइंट, provided transportation of goods services to A Limited, a registered person under GST in state of Gujarat, and received an amount of 10 lakhs as a concession for the same. क्या करना है इस केस में मुझे बताओ. सप्लाई है 10 लाख का, GTA की सर्विस दी है, पर क्या इस पे GST लगेगा. GTA सर्विसेज बाय XYZ टू A, यहाँ पे RCM लगने वाला है 10 lakhs RCM, तो इसको कोई टैक्स नहीं भरना है. एम आई क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, परचेज. दिस इज रियली अ गुड पॉइंट. इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी. चलो लेट मी सी तुम्हारा नॉलेज क्या बोलता है. परचेज मशीनरी विद एन एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर फैब्रिकेशन ऑफ बॉडी for luxury buses amounting 50 lakhs. The machinery is installed at XYZ Limited premises and the same was purchased from B Limited, a registered person in state. This point को समझना पड़ेगा. Okay. Purchase the machinery with an advanced technology for fabrication of body for luxury machinery purchase की for fabrication amounting 50 lakhs की machinery है. The machinery is installed at XYZ के premises में इंस्टॉल भी है. ये किससे परचेस करी है, B से परचेस करी है, who is registered in राजस्थान, राइट. और B ने किससे प्रोक्योर करी है, B ने C से प्रोक्योर करी है, who is in महाराष्ट्र. अच्छा बाद में मिस कर गए, वेट. And the delivery was made by C directly to the premises of XYZ Limited and installation work was carried out by the engineers of C Limited. The amount charged is 42 lakhs. तो यहाँ पे 42, यहाँ पे 50. अब मुझे पहले इस क्वेश्चन में बताओ क्यों 10(1)(c) लगा. व्हाट इज 10(1)(c)? सुनील, 10(1)(c) लगेगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे 10(1)(c) नहीं लगेगा. बिल्ड टू शिप मॉडल नहीं कहलाएगा. यहाँ पे प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन देखा जाएगा. क्या देखा जाएगा? प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन. समझ में आया?
तो ये मशीनरी के ऊपर जो टैक्स पे करेंगे, थर्ड पॉइंट, 50 लाख की जो मशीनरी है, कितनी की मशीनरी है, 50 लाख की जो मशीनरी, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कितना आएगा, मेरा कैलसी कहाँ चला गया यार, ये रहा, 9 लाख रुपए। 50 लाख की मशीनरी का 18% से 9 लाख रुपए का मुझे आईटीसी मिलेगा। am I clear? समझा कि नहीं समझा, कोई रिप्लाई नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट, परचेज टायर्स for its own fleet of trucks and paid an amount of 1 lakh on such purchase. Who is going to explain me this point? और जिसने सही जवाब दिया उसको चॉकलेट मिलेगी, टॉफी मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी, लॉट्स ऑफ लव मिलेगा। बोलो जल्दी बोलो, इसका ट्रीटमेंट कौन बताने वाला है? बहुत ही लास्ट क्वेश्चन है, नोबडी इज रिप्लाइंग, सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच। क्योंकि तुम लोग घर से रीड करके नहीं आ रहे हो, तो घर से रीड करके नहीं आओगे तो मेरा पढ़ाया हुआ तुमको दिस आर द क्वेश्चंस व्हाई यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन्स। आई डिडंट अंडरस्टैंड ओनली मनमोहन व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। कैपिटल एसेट है, नो इनपुट, क्या मतलब हुआ इसका? बॉस, मैंने टायर्स परचेस किए अपने ट्रक के लिए, और ट्रक में किस बिजनेस में यूज़ करने वाली जीटीए, और जीटी पे क्या लग रहा है? आरसीएम लग रहा है। एंड इफ यू रिमेंबर रूल 42 एंड 43 क्या बोलता है? अगर आप आरसीएम सप्लाई कर रहे हो तो ये एग्जम्प्टेड सप्लाई हो गया है, और एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए आपने जो टैक्स पे किया उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझा कि नहीं समझा, बोलो मुझे फटाफट। इसका नो आईटीसी, सेकेंड पॉइंट में नो आईटीसी। फोर्थ पॉइंट, XYZ procures certain engineering services from its fabrication business through electronic mode from Luminous, a company located in Italy. The concession paid to Luminous was 15 lakhs. For the certain goods were exported by XYZ Limited for carrying out repair work on the same to Luminous. The concession paid for such goods is 5 lakhs. तो एक्सपोर्ट के ऊपर तो इट्स 088 सप्लाई, तो नो टैक्स, पर 15 लाख पे हमें जो हमने टैक्स पे करेंगे उसका हमें आईटीसी मिलेगा। $2,70,000। तो मनमोहन कहाँ बोला है डेप्रिसिएशन के बारे में कि हमने कॉस्ट में ऐड कर दिया? टैक्स का पोर्शन कॉस्ट में ऐड कर दो, पर यहाँ पे तो आईटीसी मिलने ही नहीं वाला है। बॉस, डेप्रिसिएशन की गलत पॉइंट याद है आपको। अगर मैं टैक्स एलिमेंट कॉस्ट में ऐड कर दूं तो टैक्स एलिमेंट का आईटीसी नहीं मिलता है। ऐसे सारी एसेट्स को मैं डिप्रिशिएट करती हूँ तो आपके हिसाब से तो कोई भी एसेट का मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इफ दैट टैक्स एलिमेंट व्हाट आई हैव पेड, इफ दैट आई हैव एडेड टू कॉस्ट,
and then on the tax element if I'm charging depreciation, then no ITC. But यहाँ पे तो बात ही नहीं है. I am buying tires for truck and the truck I'm using for GTA and that GTA is under RCM. So that means who is paying tax? Recipient. So as per section 17 subsection 3, it is exempted supply for rule 42 and 43. एंड एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलता है. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? प्लीज कंफर्म. कोई कंफ्यूजन बताओ. लास्ट क्वेश्चन आज ज़्यादा नहीं. सी बॉस, मैं अगेन कह रही हूँ 3 क्वेश्चन रोज रीड करके आओ. 3 क्वेश्चन रीड करके आओ, सॉल्व करके आओ, तो ये लेक्चर विल मेक यू हेल्प यू आउट. नेक्स्ट, प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड इट्स रिलेटेड पार्टी एंड रिसीव एन अमाउंट ऑफ 5 lakhs. आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन कितना है? 7 lakhs का. भाई यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे अगेन 5th पॉइंट की मैं बात करूँ, RCM लगेगा तो मुझे टैक्स नहीं पे करना है. देन मैंने 6 पॉइंट स्क्रैप बेचा, 5 लाख के स्क्रैप पे 18% मेरा आउटपुट सप्लाई होगा. तो 5 लाख का 18% कितना होता है? क्लियर? 7th point, purchase goods related to fabrication business 10 lakhs out of a goods stolen 1 lakh. तो हमको पता है स्टोलन के ऊपर हमें ITC नहीं मिलता है. तो 9 लाख रुपए का 18%, 1,62,000, 1.62 lakhs. And last point, receive an advance of 10 lakhs for fabrication work of new chassis and 3 lakhs towards registration of towards transportation service. 3 lakhs पे तो RCM लगेगा. So 10 लाख पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा. 8 पॉइंट, 10 लाख पे 18% होता है 1,80,000. तो अब देखो मैंने निकाल लिया कि मेरे को पे कितना करना है. 1,80,000 प्लस 90, ये मुझे पे करना है. और ये मेरा ITC मेरे पास 9 लाख प्लस 2,70,000, सॉरी 9 लाख प्लस 2,70,000 प्लस 1,62,000. टोटल ITC मेरे हाथ में 13,32,000 है. यस, यहां तक कोई कंफ्यूजन? सी, दिस इज अ वे टू सॉल्व द क्वेश्चन. 30 केस स्टडीज दिए ICI ने, नथिंग लाइक इट. एक बार आपने इन सबको प्रैक्टिस कर लिया ना, आपको तरीका आ जाएगा केस स्टडी करने का. आंसर, मैंने नेट GST लाइबिलिटी पेबल इन कैश. अच्छा, अब लाइबिलिटी मेरी कितनी है? 270. क्रेडिट मेरे पास कितना है? 1332. तो देखा जाए तो मुझे कैश में कुछ भरना नहीं है, राइट? बट कुछ और आंसर है क्या आपके दिमाग में? करेक्ट. ये मैंने क्या है, ये आई एम पेइंग टैक्स अंडर RCM 15 लाख पे. जल्दी बोलो. ये आई एम पेइंग टैक्स अंडर RCM क्योंकि मैंने क्या किया, लुमिनस इटली से लिया है. तो RCM के अंदर यू हैव टू पे कैश एंड देन यू कैन टेक ITC. तो 270 मुझे कैश में पे करना पड़ेगा. तो आंसर इज B. ये कल भी आया था क्योंकि बच्चा नील बच्चा नील ही लिख के आएगा. नेक्स्ट, ITC कितना है? 1332 जो हमने अभी निकाला. कितना ITC है? 1332. थर्ड क्वेश्चन, whether Luminous is required to obtain registration in India to discharge this liability? नहीं, क्योंकि recipient कौन है? Recipient कौन है? Recipient will pay tax under RCM. No.
न्यूमिनस की लायबिलिटी क्या है? नील है, क्योंकि रेसिपिएंट विल पे टैक्स. फोर्थ, डिटरमाइन जीएसटी लायबिलिटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विस बाय एबीसी. तो एबीसी को तो टैक्स पे ही नहीं करना है, क्योंकि हमेशा क्या आने वाला है? आरसी में आने वाला है, तो नील. And last question, in case of machinery sold and fabricated by C Limited, the place of supply, क्या है पॉइंट है? ये वाला अपन जो डायग्राम बनाया था ना यहाँ पे, C to B and B to XYZ, C to B and B to XYZ. यहाँ पे बिल्ड टू शिप मॉडल नहीं लगने वाला है. अगर बिल्ड टू शिप मॉडल होता तो आंसर राजस्थान हो जाता. तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन बोला गया है. इंस्टॉलेशन कहाँ हो रहा है? कर्नाटका में. तो लोकेशन XYZ. In case of machinery sold and fabricated by C, the place of supply is XYZ. Tax charge will be what? तो C कितना चार्ज करेगा? C के लिए सप्लाई कितना है? 42 lakhs का. तो 42 lakhs का 18% कितना हुआ? 7,56,000, राइट? Answer is B. Am I clear? Am I clear? Ten 1C, 10 1A, 10 1B. बिल्ड टू शिप मॉडल कौन सा है सेक्शन? बिल्ड टू शिप मॉडल कौन सा है? बिल्ड टू शिप मॉडल कौन सा है? 10 1B या नहीं, असेंबली इज 10 1D आई थिंक. लेट मी चेक. असेंबलिंग इज 10 1D. एक मिनट चेक कर लें दो मुझे, जगह नहीं है. मेरा स्टूडियो इतना छोटू सा है. एक सेकेंड दो, मेरा भी एकदम करेक्ट. 10 1D मैं सही बोल रही थी. 10 1C इज विदाउट इन्वॉल्वमेंट. 10 1D एक मारूंगे ना पकड़ के. सुनील, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही लेट उभरा है अपने को बार बार. इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है. अंडर कॉन्फिडेंस भी काम नहीं आता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी काम नहीं आता. ओवर कॉन्फिडेंस तो ले डूबता है अपने को. लास्ट क्वेश्चन करवा दो ये वाला. चलो करवा देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है. पहली बार क्वेश्चन बड़ा छोटा लगा. ये हमारा अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है. एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स 3 केस स्टडीज. आज मैं 5th तक पढ़ा रही हूँ. 6, 7, 8 प्लीज डू रीड एंड सॉल्व एंड कम. Varun Associates is a supplier registered under GST in Delhi. It is engaged in manufacture of product A and product B. Product A is taxable product, whereas product B is an exempt product. अच्छा, A क्या है? Taxable. B क्या है? Exempted. It is also engaged in manufacture product C, a taxable product, which is exported by it to other countries without payment of tax under letter of undertaking. मतलब हम सी को क्या कर रहे हैं? जीरो रेटेड सप्लाई है. इट हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परचेज ऑफ मशीन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग. 1 अप्रैल 18 को मशीन एक्स परचेज की थी 10 लाख रुपीज की.
एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए, तो इसका हमने क्रेडिट ले लिया होगा, येस और नो? नहीं, 5 ही करूंगी, बस हो गया। जल्दी बताओ, इसका क्रेडिट ले लिया होगा मैंने, क्योंकि मैंने एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रही थी। 1 अक्टूबर 2019 को मैंने मशीन वाई परचेस करी फॉर 15 लाख, एक्सक्लूसिवली फॉर बी, एग्जम्प्टेड है, तो इसका क्रेडिट मैंने नहीं लिया होगा। 1 मई 2020 मशीन Z 20 lakhs, एक्सक्लूसिवली यूज फॉर जीरो डेट सप्लाई, इसका भी क्रेडिट ले लिया होगा। ओके, अब 1 अप्रैल 2021 को क्या हुआ? वरुण एसोसिएट स्टार्टेड यूजिंग मशीनरी Y फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट A एज वेल। A एज वेल मतलब B तो बना ही रहा था, अब A भी बना रहा है, मतलब Y इज नाउ बीइंग यूज्ड फॉर कॉमन पर्पस। Y is now used for common purpose because it was earlier used for B, and from 1st April 2021 it's going to be used for A also. All the purchase and sales are interstate and rate of I is applicable to 18%, subject to information given above. Solve the questions. Very good. The amount of ITC which has been credited to electronic credit ledger during the financial 18-19 फाइनेंशियल है, ये भी 18-19 फाइनेंशियल ईयर है, बट ये 2021 है, राइट? तो मुझे बताए 18-19 में हमने कितना क्रेडिट किया होगा? इसका 10 lakhs का 18%, 1,80,000, yes और नो? आंसर इज 180। परफेक्ट। ए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। 18-19 में परचेस की, नहीं ये 19-20 हो गया, सॉरी ये 19-20 हो गया। ये हर साल एक मशीन परचेस की, 18-19 में, 19-20 में, 20-21 में। एम आई क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ GST पेड ऑन परचेस मशीनरी विच हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 18-19, 19-20 एंड 2021। तो बस इन तीनों को तो क्रेडिट किया ही अपन ने, दोनों को, इसको नहीं किया। तो 15 लाख का 18% कितना होता है? 2,70,000। डी। कोई कंफ्यूजन? 18-19 को भी क्रेडिट किया, 20-21 को भी क्रेडिट किया, सिर्फ 19-20 क्रेडिट नहीं किया था क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज हो रहा था। एम आई क्लियर? बाकी सारे सो रहे। थर्ड, अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल ITC in respect of machinery Y as per rule 43 to be added to output tax liability, अब वो निकालना पड़ेगा कितना। अब देखो, मैंने 15 लाख रुपए की एसेट परचेस करी। कब परचेस करी? 1 अक्टूबर 2019 और आज का डेट है अप्रैल 2021। मैंने आपको ऑलरेडी प्रेजेंटेशन बताया था, सीरियल नंबर, असेट, पीरियड लेफ्ट, कॉमन क्रेडिट, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड कैश हमारे लेजर में कितना जाएगा, क्रेडिट लेजर में कितना जाएगा। तो 15 लाख का 18% पूरा 270 लेजर में गया, बट हमने जितने पीरियड्स को क्या किया, एग्जम्प्टेड के लिए उसके उतना मैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दूंगी। एवरी क्वार्टर का 5%। तो 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर 19, जैन टू दिसंबर 20 एंड जैन फेब मार्च 2021। 1, 4 और 1, टोटल 6। हर क्वार्टर कितना परसेंट? 5%। तो टोटल कितना परसेंट? 30%। तो 2,70,000 का 30% कितना होगा? 81,000। ये मेरे लायबिलिटी में जाएगा, बट मेरे कॉमन में पूरा जाएगा। और कितने पीरियड रहेगा? 6 क्वार्टर। मतलब एक क्वार्टर कितने का होता है? 3 का होता है, -60, 42 मंथ्स आर लेफ्ट। तो 2,70,000 डिवाइड बाय 60,
4,500. Every month I will be adding to my liability ledger for 42 months. तो आंसर कितना आना चाहिए? 81,000 प्लस 4,500. सिर्फ 81,000. अच्छा, STI बोला है, STI राइट, तो सिर्फ सी आएगा. क्लियर? कोई कंफ्यूजन है क्या? बताओ मुझे. Then what is the time period to which common credit needs to be computed? Boss, आप 1st April से काउंट नहीं करोगे. You are going to count from 1st October 2019 से लेके 6 months, 60 months सॉरी, मतलब 5 years. तो 20, 21, 22, 20, 24. 30th September 2024. Am I very clear? Yes. Clear? 5th question. Amount of common credit for the month of April 270. कोई कंफ्यूजन? मैंने अभी निकाला है. कॉमन क्रेडिट कितना होगा? पूरा ही कॉमन क्रेडिट में जाता है, राइट? लास्ट क्वेश्चन. How is the amount of common credit attributable to exempted supplies? It is added to the output tax liability. I hope I am very clear. 3 क्वेश्चन आज किए. कल 3 का टारगेट रखते हैं. एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स अगेन दोज हैव जॉइंड मी टुडे. बच्चों ने टाइमिंग्स चेंज करवा दी है रिक्वेस्ट करके. तो जो है रिविजन सेशन रहेगा मॉर्निंग 9:30 to 10:30 एंड 10:30 to 11:30. 2 अलग अलग लिंक रहने वाली है. मैं क्लियर? ऑन माई चैनल इट्स AM मीता मंगल चैनल. एंड देन 7 PM to 8 PM इवनिंग में सुमित सर के चैनल पे क्वेश्चंस. एम आई क्लियर? तो दोज हु आर ज्वाइनिंग इन इवनिंग, आई थिंक आपका क्लैश हो रहा है इवनिंग में बहुत ज़्यादा क्लैश, इसलिए मैं मॉर्निंग में 9:30 to 11:30. बट येस 10:30 को आई विल चेंज द लिंक. तो दोज हैव येट नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट. बॉस, ये क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं हमने 3 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में कर दिए. 3 क्वेश्चंस आई टुक इट 2 hours फॉर सॉल्व एंड देन आई हैव कम टू यू. तो प्लीज हाथों हाथ आज ही सॉल्व कर लेना. And last but not the least, if your near ones or dear ones are writing CA Inter Group 2 SM, old syllabus or new syllabus, दोनों के product is available on our website www.cameetamangal.com. Am I clear? So please, either you can contact on the mobile number or you can visit my website and book the product. Okay. So thanks a lot. Thank you very much. और please कल next 3 questions read करके सिर्फ नहीं, solve करके भी आना. Okay, bye. Take care. Bye-bye.